So it's 11:03. We'll start at 11:05, just 2 more minutes. And thank you for your patience. Sharp at 11:05, we'll start. Kindly put your mobile phones in silent mode. So it's 11:05 now, and we are formally starting our webinar today. Welcome all the participants in today's webinar, Beginners to Pro. And I welcome you all on behalf of Team Novato and Team Talentage that you have joined in this webinar today morning. Despite it being a Saturday morning, you could have devoted your time somewhere else, but you have decided to join us. That shows that how keen are you in terms of your learning, and you wanted to know about various opportunities which is available today. So welcome once again. Let's go to the next slide. Basically, it is a beginner to pro program we'll be talking today. And the vision of Novato is inspire and empower people with new and innovative solutions. That is what we keep doing. And today's program is basically because of that, so that we can inspire and empower people for new and innovative solutions, which you will be hearing from the eminent faculties who are here with us from Talentage today. So having talked about vision, I'll now take the opportunity to talk about Novato. Novato is basically an upcoming edutech company who has very recently joined hands with Talentage. I think Talentage needs no introduction. All of you or most of you might be knowing about Talentage. It is one of the most reputed edutech companies in India, working since I think last more than 10 years or more, and providing, let us say, world-class executive education programs to the budding leaders, aspiring leaders, and budding corporates. So we have joined hands with Talentage for the Eastern region. And together with Talentage, we are bringing this world-class executive education to the budding leaders and aspiring leaders and executives. So this is about Talentage. If we talk a little more about Novato, I would say that we are into 4 domains. The prime, of course, is executive education, wherein, as I said, that we have already joined hands with Talentage to bring you the best-in-class executive education programs available from the premier B schools in India as well as at abroad. So
We are having with today Mr. Ashfaq Ahad and Mr. Angad Singh from both from Talentage. They will take all of us through what kind of programs we are having and which are the institutes and all that. But mainly today we would be talking about the Beginners to Pro program, which is for the Masters of Personal Management. Also, we are into executive coaching. We are coming up with executive coaching facilities, wherein, let us say, coaching corporates, the people from corporates, experienced people from corporates will be with us, providing individual one-to-one coaching or maybe group coaching as and when it is required to any of the aspiring leaders who want to hone his leadership skills and get into the ladders of corporate throne. We are into skill development and enterprise solutions as well. So there are various programs we'll be shortly coming up with in terms of skill development. Of course, executive education is also a part of this skill development. And finally, enterprise solutions. Enterprise solutions also in terms of learning and development towards the corporates, that wherever any corporate finds any support in terms of, let us say, training and development of their manpower, their skill development and all. So we are there to provide them with the requisite kind of bandwidth. So this is what is Novato. And the main question today for let us say, the people who are just finishing their education and on the threshold of joining a corporate career or a kind of a job, the first question is that, am I employable? We need to ask ourselves today that whether I'm employable or not. I might have done something, let us say graduation or post-graduation or whatever it is. But the moot point is, am I employable? Yes or no? We need to really introspect and reflect on this a little more. I'll now tell you about why I'm telling you like this. Let's go to next. See, if we see this kind of a profile of education in India, you can see that 62% of the population in our country is in the age group of 15 to 59 years. Okay, so this is very encouraging, I would say. And out of that, I would say 54% of the total population below 25 years of age. So this is also very encouraging and inspiring. There are so many countries in the world where you will find that the working age group of the population is even higher. Not so much percentage of their population is under below 25 years of age, especially if I talk about countries like Japan. And many other countries, those who mostly European countries, they're facing this kind of a problem where most of their population is at a very high age group. This is one. Second is, despite being one of the youngest country in the world in terms of our demography, population, so we have 2% workforce is only skilled, as compared to, if you see the statistics in other countries, which says that 96% in South Korea, 45% even in China. China is almost our next door neighbor. 50 to 55% in USA and 74% in Germany. So we gave some specific examples here, but the moot point is that 2% is very, 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 very less as compared to any of the countries as we talk about. Okay, so there is enough opportunity for India to make our workforce skilled, further skilled. The more we skill ourselves, the greater will be the opportunity before us in terms of job, career enhancement and all, and even personal development. So hitherto what happened, ever since independence, we kept on progressing and developing. And mostly the focus was on how do we build higher education. So that is how we progressed so far. But we have not thought much basically in terms of employability quotient. So we need to think about what is our employability quotient. Okay, so
Employability quotient is, I would say that low because our skill quotient is low. As we said that 2%, only 2% of the workforce is skilled. So, so that is what is leading us to our low employability quotient. So we need to definitely work on both these employability quotient as well as on low skill quotient. So this kind of a program, Beginners to Pro, or let us say various other programs, what we are bringing up in this with Talentage at Novato is basically aimed at how do we increase both the employability quotient in terms of developing the skill quotient further. Next, let us go to next. Now, this is a very interesting and intriguing statistics, as you can see, that the first on the left hand side, it shows the picture. What it shows is that what is the hiring intent by the organizations in terms of education domain, and on the right hand side, what is the hiring intent by the organization by work experience. It shows both. So you can see that a management degree with graduation puts you in the category of 35% of the hiring intent by education domain. You can see that management or equivalent MBA, PGDM, that is around 13%, and graduates BCA, BBA, BCom, BSc, that is 22%. So we are talking about this 22 plus 13, 35%. So management, graduates with management degrees or equivalent is having 35% hiring intent in terms of education domain. And now let's go to the work experience domain. Here also it is further interesting. We could see that 19% freshers plus 35% people, those who are having 1 to 5 years experience, 54%. Though in most cases we found, or it is found, that the companies hire 54% of their employees or workforce from fresher or with work experience of 1 to 5 years. So you can understand where the main opportunity is lying. On the education side, those who have done their graduation and then went on to get a, let us say, management degree or equivalent, they stands the highest chance so far as the hiring intent for organizations in terms of education. And at the same time, those who are freshers and haven't started their career as yet, or just on the threshold of their career, plus those who are in the within the first 5 years of their career, stands the highest chance of getting employed by organizations. So this is really very interesting. So we all can introspect and find out where are we in terms of both education domain as well as in terms of both work experience. Yeah. So now, before I introduce Dr. Ashfaq ul Ahad to all of you, and his colleague is also here with us, Mr. Angad, I would just say a couple of words to all of you, is that please feel free to participate in this discussion and use the chat box to your maximum extent possible. Whatever questions you are having, please put it through the chat box. Me and my colleagues will keep answering that. And even at the end of it, there is a specific question answer session, and your question answers will be taken up at that point of time. And Dr. Ashfaq will be talking along with Angad and all of us. So that is how we are placed today. Let me now introduce Dr. Ashfaq ul Ahad. He is basically the business head of Talentage Academy. So we talked about Talentage at the beginning. We will hear a little more from Dr. Ashfaq also regarding Talentage Academy, what it does, and how it can facilitate all of us, those who have joined in this program. He has 2 decades of experience, and in that he has worked in various range of industries, including education, banking, IT, and hospitality. So across the spectrum experience Dr. Ahad is having.
So prior to Talentage, he co-founded Fajlani Academy of Business Sciences, FABS, India's first reverse management institute. So this is indeed a very great feat, I would say. And what he did in his corporate career spans in different organizations like Hutchison, three global services. As HR leader, he was in Centel, which is a Nasdaq listed IT company, as global head for talent acquisition and talent management. And he was also the chief of HR for Centel's two joint ventures with State Street Bank and Reliance Mutual Fund. So he was with General Electric Company, where being part of a prestigious HRLP program, he was with ICICI Bank as the lead HR for the entire north of India. And as we can see that he was awarded as the outstanding young HR professional in 2010 at the World HRD Congress. A fantastic feat, I would say. He is the recipient of Centel's President Award for being the global highest contributor. And finally, he has earned a master's in personal management from the Symbiosis Institute of Business Management, Pune. So this is what Dr. Ashfaq is, I would say, virtually present with us today from Talentage, along with Mr. Angad. Mr. Angad Jit Singh Chani is also here with us, along with Dr. Ashfaq. He is basically, he looks after the executive education sales part of it, and he's the head of sales for Talentage. So welcome, Dr. Ashfaq, and welcome, Mr. Angad, both of you. And I once again welcome all our participants in today's webinar. I now invite Dr. Ashfaq. The floor is yours, please. Thank you, Gautam sir. Just wanted to do a check first, because you said the floor is mine, but unfortunately it's all virtual. So I want to say, is the Zoom mine? Is it working for the heck of discussion? So am I audible? Is it good from an audible perspective kind of thing? Yeah, you are. So I'm actually taking the call from. I'm taking the call from my home, and I generally have a kind of a little bit of internet issues out here. So, so from that point of view, I'm sorry if at all, anytime you feel my audio, audio is not clear, I'll switch off the video and move towards just the audio file. Then it should be better. All right. Yeah. So first of all, thank you very much, the team Novato, for even inviting me here. For me, it's an honor and pleasure to be with all of you today. And as you beautifully put it, Saturday morning, 11 baje, bachas can do anything in life while listening to some old man like me. But since you've taken that time out to be here, I'm more than happy to spend time with you. I feel the session should be more and more interactive. So therefore, there are some basic things I will do is first to see whether you know how to use the chat box. So show me that you know how to use the chat box. So in a chat box, just say hi, or this is something I want to know whether you know how to use the chat box. So just put a hi or hello or something in the chat box quickly. Let me see. Okay, Richa, I heard you. Thank you very much. Hello. Avinash, I can see you coming up. Thank you. All right. So I know people are, I'm going to put my video off because I want to type as we speak as well. All right. So I'm going to put my video off. Okay. All right. So on the chat side, I'm getting people to respond to me quickly. Good morning, Prashant, Amanji. Thank you very much. Dheeraj, thank you. Shilpa, you can hear me. Anshul. Okay. Next. Which language are you most comfortable with? Is it English or Hindi? I know only these two languages. The third language I know is Kashmiri. I can tell you that aapko kisi ko nahi samajh mein aane wali hai. So tell me which language you want me to talk to, because mera objective is कि आप लोग सीखे. Okay. जितना आप सीखोगे वो मेरे लिए अच्छा है. आई एम नॉट हियर टू किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, लेकिन मेरे को बच्चों को सिखाना है विद व्हाटएवर लिटिल आई नो. मुझे भी सब कुछ नहीं आता है. ओके, सो आई हैव गॉट सम पीपल टेलिंग मी इंग्लिश, सम आर सेइंग बोथ एंड सम आर सेइंग हिंदी. तो मैं मिक्स करूंगा. ठीक है. सो आई होप, इज देयर एनीबॉडी हु डज नॉट नो हिंदी? Because kabhi kabhi there are some South Indians sitting in the call and he doesn't know Hindi at all. Is there anybody who does not know Hindi, just for my learning purposes? Okay. All right. So theek hai. So I try to keep it Hindi as much as possible, because some people are also writing to me in private कि सर थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा. और बाय द वे मेरे को हिंदी भी बहुत अच्छी से आती है, एकदम ठेठ हिंदी आती है मेरे को. सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि
बच्चों, पहला चीज मैं आपको एक लाइफ में बताना चाहता हूं, वो ये है कि हमको लगता है कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, और अगर मेरे को अंग्रेजी नहीं आती मेरे को कुछ नहीं आता है। ये बिल्कुल गलत थॉट प्रोसेस है। हमको कम्युनिकेशन सीखना है। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन है कि मैंने कहा और आपको समझ में आया। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब मैंने इंग्लिश में कहा और इंग्लिश में आपको समझ में आई, ये तो लैंग्वेज था। लेकिन मैंने इंग्लिश में ऐसी बात कही जो आपको समझ में नहीं, तो कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लाइकवाइज, अब मैंने हिंदी को इतना डिफिकल्ट कर दिया कि आपको समझ में नहीं आ रही है। भले आपको हिंदी आ रही है, लेकिन मैंने कुछ हिंदी के वर्ड्स यूज करे जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, हाँ बड़बड़ जरूर हो रही है। सो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू कि मैं खुद एक छोटे से शहर कश्मीर से हूं, और वहां पर हमको ना तो मेरे को, मैं अपनी बात बताऊं, ना तो मुझे अंग्रेजी आती थी ढंग से, और हिंदी भी ठीक ठाक ही आती थी, बिकॉज हमारी लोकल लैंग्वेज इज कश्मीरी। लाइक आई हैव रिचा सेज आई नो मराठी। बाय द वे रिचा, मैं बॉम्बे, आई एम सिटिंग आउट ऑफ बॉम्बे राइट नाउ। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, रादर मुंबई में रहता हूँ, एंड मराठी थोड़ी थोड़ी मुझे भी आती है, राइट? एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ इट। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट वी नीड टू, मैं कुछ कहूं और आपको कुछ वो चीज समझ में आ गए, यही रियल गेम है। बाकी सब तो ज्ञान है। अंशुल, यूर राइट नाउ यू स्पीक नेपाली। बेटा मेरे को बिल्कुल नहीं आती है, बट हिंदी आती है आपको समझ में। अंशुल, जस्ट टेल मी, a lot of my Nepali friends know Hindi, so I'm going to keep it between Hindi and English. Okay. So why are we here? Before I go to why we are here, I want each one of you to put कि आपको what course are you doing or what are you doing right now? Okay. हम तनिक भोजपुरी में भी कुछ कुछ बोल देंगे शिल्पा जी। फॉर नाउ जस्ट पुट वन थिंग which is what okay, which course are you doing right now? Are you a graduate? Are you a postgraduate? Are you doing a job? Just put Richa is doing PhD in artificial intelligence. My God, अच्छा मैं रिचा जी थोड़े थोड़े बीच में आप भी कमेंट कर लेना, बिकॉज मैंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करी है। ओके, Satya Rupa says कि I am doing already my MBA. Anshul has already graduated. Okay, Avinash is BSc IT, because मुझे आपके बैकग्राउंड समझना जरूरी है, so that I can make the talk relevant for you. Okay, Prashanti Singh, मैं already MBA कर रहा हूँ, pursuing MBA from Panayam Bhojpuri. I can speak well, very good. I'm pursuing BCA. I am doing graduation BCA कर रहा हूँ. I am graduating from BSc IT. PMIR, what is PMIR? Is it Personal Management and Industrial Relations, Smriti, just let me know that. I am pursuing MBA, BSc IT, postgraduate, BCA कर रहा हूँ. Very good. All right. Okay, Smrita says yes, it is Personal Management and Industrial Relation. That is something what I have also done. So that's good. Completed my ITI. Very good, Shilpa. Good. Now, the next question, and this is my last question. यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब, why are you here? What is that one single thing you want to hear from me? That's my question. For example, we do this session in live, तो सेशन के बाद ना वहाँ चाय और समोसे होते हैं, तो मैं बच्चों को बोला, अगर चाय समोसे आना तो जल्दी सेशन खत्म करेंगे ताकि आप चाय समोसे पियो। लेकिन ऑनलाइन में चाय समोसे भी नहीं है। सो टेल मी व्हाई आर यू हियर? अब ऐसे मैं आपको सुनने आया हूँ। गुड बेटा, आई एम हैप्पी दैट यू आर हियर टू लिसन टू मी, बट क्या सीखना है आपको मेरे से? बिकॉज आई हैव, गॉड इज ग्रेट, मेरे को डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज है। मैंने बहुत सारी चीजें करी है, इंडिया में काम किया, बाहर काम किया है, मैं फिजिकल एजुकेशन में था, मैं डिजिटल एजुकेशन में हूँ, बट आई वांट टू नो एग्जैक्टली आपको क्या समझना है। लाइक अमन कह रहा है वन ऑन वन मैसेज पे मुझे कुछ स्किल्स सीखने हैं, बट कौन से बेटा, कौन सा डांस सीखना है आज? मेरे को नहीं आता है। टू गेन नॉलेज अबाउट व्हाट, प्रशांत? आई सो जब तक आप इस प्रेजेंटेशन में या वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू डू विद यू, जब तक आप ये नहीं समझने आ रहे हो कि आप यहाँ क्यों हो, then you are not going to achieve anything. Are you getting what I am saying? जब तक आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा डेस्टिनेशन है, मुझे बिहार जाना है, क्लियर है लाइफ में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं देखने जा रहा हूँ ट्रेन का सफर क्या है, तो देन यू ओके, वेरी नाइस, नाउ आई एम गेटिंग गुड आंसर। सर मैं समझना चाहता हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। वेरी गुड धीरज, मैं इसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। हाउ टू improve your personality is what I'm getting one on one message में from Aman. Yes. In how to become employable, Smrita is saying how to become employable. Satya Rupa is saying कि मुझे समझना है कि Novato क्या करता है। Very good. Abhay says I want to know Novato क्या करता है. We'll come to that also. Okay, Richa says कि I have attended previous Novato webinars. Okay, good. All right.
सो नोवाटो क्या करता है गौतम जी, आई वुड वांट यू टू कम बैक टू इट अगेन, क्योंकि बच्चों को शायद अच्छे से समझ में नहीं आया नोवाटो क्या करता है, बट नोवाटो टैलेंट एज के साथ क्या करता है वो मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। टैलेंट Thank एज, टैलेंट एज इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है। इसका क्या मतलब है, आज तक आप फिजिकल एजुकेशन करते थे, सो यू यूज्ड टू गो टू इंस्टीट्यूट्स टू वर्क, टू स्टडी। अब अगर आप वही चीज ऑनलाइन में करना चाहते हो तो यू हैव रीच टू द बेस्ट कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी है। 4.5 लाख स्टूडेंट्स है हमारे पास, और जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वी टीच फ्रॉम आईएम्स। हमारे पास 5 आईएम्स के टाइप है। XLRI है जो जमशेदपुर में है, योर SP जैन, जमनालाल बजाज, नरसी मोंजी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जिनका हम इंडिया में उनकी कोर्सेज चलाते हैं completely online. So for example, if Richa, who is already doing her PhD in artificial intelligence, अगर रिचा कहती है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक IIIT बैंगलोर से एक सर्टिफिकेशन करना चाहिए ताकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करूं एक IITian के पर्सपेक्टिव से, she can come to us automatically because we run the artificial intelligence machine learning program for IIITs. Okay, suppose फॉर एग्जाम्पल somebody wants to say कि मुझे ये समझना है कि IT सेक्टर कैसे काम करता है, या फॉर एग्जाम्पल मुझे MBA करना है, तो यू कैन कम टू अस एंड डू योर MBA विद अस, probably through an IIM Lucknow or an IIM Raipur. You can do a leadership program with us from XLRI, something like that. For example, PMIR, there was one student who had done PMIR, I'm just slipping the name, I think it was Smriti ने कहा मैंने personal management and industrial relations किया, अगर अब she wants to do an XLRI का program because that's the best in PM and IR, without leaving her job while she's working wherever she's working, she can take our online PMIR program from none other than XLRI जो इंडिया का सबसे बेस्ट है. All right? ओके, फॉर एग्जाम्पल एक 1-on-1 मैसेज में मुझे आ गया, अमन कह रहा है सर मुझे MCA करना है, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है. इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. मैं पूछूंगा बाय द वे अमन करोगी क्यों MCA, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट हाँ, अगर तुमको IT में इंटरेस्ट है, थिंक अबाउट मास्टर्स प्रोग्राम इन डेटा साइंस, क्योंकि दुनिया कंप्यूटर एप्लीकेशन से कहीं आगे निकल गई है. मैं तो सजेस्ट करूंगा अमन, आप ये सोचो कि मैं मास्टर्स प्रोग्राम इन एनालिटिक्स करूं बिकॉज दुनिया इस डायरेक्शन में जा रही है. और आई वुड सजेस्ट यू टू लुक एट MBA इन IT, ताकि आप मैनेजमेंट का कोर्स करो बट यू कैन स्टिल रिटेन योर वर्ल्ड ऑफ IT. मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बट अगर हम इंजीनियरिंग वर्टिकल देखते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि मैं खुद सिंटेल में काम करता था, दैट वाज एन IT कंपनी. मैंने मेरी जिंदगी में सिर्फ सिंटेल में 50,000 लोगों को नौकरी पे लगाया है, क्योंकि HR हेड था तो HR रिक्रूटमेंट मेरे हाथ में ही आता है. 50,000. सो इंजीनियरिंग और MCA और BCA वर्टिकल का मेरे को इन एंड आउट मालूम है. बच्चों ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है, जब सिंटेल, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, सत्यम, कॉग्निजेंट इस टाइप की कंपनीज होंगी, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी इंजीनियर हायर करने की. सेकंड प्रेफरेंस वुड बी अ BCA. जब वो MCA को हायर कर रहे हैं, उसको BCA से 10 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि BCA MCA को वो लोग कोर कोडिंग में नहीं डालते हैं, दे गेट देम सपोर्ट जॉब्स. ओके, व्हेन इट इज सपोर्ट जॉब, आपने BCA किया हो MCA किया हो, कोई खास बात नहीं है. नाउ बट इफ यू हैव डन BCA, आप थोड़ा हट के सोचो, कैन आई डू मे बी अ मास्टर्स प्रोग्राम. आप कंप्यूटर एरिया में ही रहो, आप कंप्यूटर साइंस को छोड़ो मत, बहुत जबरदस्त फील्ड है, बट कैन आई डू डेटा साइंस, कैन आई डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैन आई डू साइबर सिक्योरिटी, ये सब नए नए फील्ड्स है. BCA अच्छा कोर्स है, MCA मेरी नजर में एक डिक्लाइनिंग कोर्स है. मैं ये नहीं कह रहा हूं बुरा है, बट इट इज अ डिक्लाइनिंग कोर्स. बट अगर इसी टाइम पे आपने अलग अलग ये फील्ड चूज करे जो कंप्यूटर रिलेटेड है, यू कैन. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा हैकर बनना है मेरे को टाइप्स, राइट? I mean take a certification or something like that. I'm happy to share with you जिन बच्चों के ऐसे ऐसे एस्पिरेशंस है, टैलेंट है, उनको भी हेल्प करता है, बिकॉज वी रन सम ऑफ द बेस्ट IT प्रोग्राम्स विद IIT दिल्ली, विद IIIT बैंगलोर, IIIT इलाहाबाद एंड द लाइक्स. और बाय द वे आपको जॉब अब छोड़नी नहीं है, जो कर रहे हो साइड बाय साइड आप इस चीज को करते रहेंगे. ओके, ऑलराइट. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो टैलेंट एज ए कंपनी है, अब बच्चे को मैनेजमेंट में जाना है, टेक्निकल में जाना है, छोटा प्रोग्राम करना है, बड़ा प्रोग्राम करना है,
गॉड इज ग्रेट, हम ये सारे प्रोग्राम्स आज इंडिया में डिलीवर कर रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू रिपीट, 4.5 लाख स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू शेयर विद यू कि हम लोगों ने यूएस में एक कंपनी टेक ओवर करी, दैट्स कॉल्ड ग्रे कैंपस। ग्रे कैंपस, यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। तो अगर आपको कभी मौका मिले, ग्रे कैंपस को आप थोड़ा गूगल कर लेना। ग्रे कैंपस में हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट्स है जो सबके सब फॉरेनर्स है। बिकॉज वी ऑन द टेक्निकल साइड वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग। उसमें जावा, सी प्लस प्लस, .NET, सी शार्प से मेन फ्रेम, क्लाउड कंप्यूटिंग, इससे लेकर डेटा साइंस तक के सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। This is all about Talentage. I don't want to spend more time on Talentage. I want to spend more on, I want to spend more time on helping you make decisions. मैं और अंगद, जो हमारे दूसरे कॉलीग है इस कॉल पे, मैं और अंगद Talentage का एक वर्टिकल चलाते हैं जहां पर हम बच्चों को जॉब अशोर्ड प्रोग्राम्स देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल अमन की लूंगा। अमन ने मुझे एक 1-on-1 क्वेश्चन में डाला है, सर आने वाले दिनों में कंप्यूटर का कौन सा फील्ड ज्यादा ग्रो होगा? बिलीव मी अमन, यू ऑलरेडी नो इट कि आगे जाके कंप्यूटर में कौन सा फील्ड बढ़ेगा। वो फील्ड कुछ मैं आपको बताता हूं, एक डेटा एनालिटिक्स है, एक डेटा साइंस है, एक साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बोल नहीं सकता हूं कि एग्जांपल आने वाले दिनों में जूम पे मैं कॉल कर रहा हूं और अमन से इस समय बात कर रहा हूं, अमन ये कॉल अपने फोन से ले रहा है और इसी दौरान मैंने उसका फोन हैक कर लिया और उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। ये भी हो सकता आगे जाके। ऐसी चीजें ना हो, कम्स द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो द वर्ल्ड, मतलब बट अगर हम यही कहेंगे कि नहीं नहीं सर मैं ना अभी भी मैं कोडिंग करना चाहता हूं, तो करते रहना बेटा, बट वर्ल्ड हैज मूव्ड लिटिल अहेड ऑफ ऑल ऑफ दैट। सो कमिंग बैक टू अमन योर क्वेश्चन, as you go forward, more and more courses that are becoming interesting in the field of computer science is your engineering रहेगी, तो मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ। engineering computer science basic रहेगा ही रहेगा, coding रहेगी, but data science, artificial intelligence, cyber security, machine learning, ये सारी चीजें थोड़ी interesting होती जा रही है। Okay, your AWS, Amazon Web Services, the cloud computing and the likes are becoming very very important. Okay, now सपोज अमन से सर मैंने कर लिया, लेकिन ना मैं खुद रहता हूँ फॉर एग्जांपल जमशेदपुर में और मैंने ये कोर्स कर भी लिया, तो लेकिन मेरे को नौकरी वोकरी तो मिलती नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई आईटी कंपनी है भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कश्मीर से था, आई डिड अ कोर्स, अगर मैं कोर्स करूं और मेरे को उसके बाद जॉब नहीं मिले तो उसमें फिर बेनिफिट क्या होगा? ये सब इतने मगजमारी करने की जरूरत क्या है? दैट इज वेयर आई एंड अंगद, जो हमारे कॉलीग है इस कॉल पे है अभी, वी स्पेशलाइज, somebody is talking in Alisha bete, can you put your phone on mute? Thank you Alisha for putting your phone on mute. God bless you, thank you very much. अब मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो वर्टिकल मैं और अंगद जी हैंडल कर रहे हैं वो है जॉब वाला वर्टिकल, which means अगर suppose Aman wants to do a data science program with us, हम उसको डेटा साइंस के साथ साथ नौकरी भी दिलाएंगे। ऑलराइट, एंड बाय द वे मॉडल हमारा कुछ इस तरीके का है कि आपको कोर्स ज्वाइन करने के फर्स्ट 6 मंथ्स में ही आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर 6 मंथ, अब मैं आपको ये प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। इस प्रोग्राम को हम बोलते हैं, सर ने बताया जैसे गौतम सर ने, MPM, बट इट स्टैंड्स फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। ओके, इस प्रोग्राम में, ये हमारी 18 महीने की प्रोग्राम है। let's say any one of you, let's take an example, रिचा जी को ये प्रोग्राम करना है। ऑफ कोर्स रिचा तो शायद करेंगी नहीं बिकॉज़ शी इज ऑलरेडी डूइंग PhD, बट जैसे ऐसे बताने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। शी विल अप्लाई टू दिस प्रोग्राम। जैसे उन्होंने अप्लाई किया, या फॉर एग्जांपल सौरभ से मुझे साइबर सिक्योरिटी करना है, तो सौरभ ने हमको अप्लाई किया ये 16-18 महीने के प्रोग्राम के लिए। विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स हम सौरभ को प्लेस कर देंगे इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? सौरभ को साइबर सिक्योरिटी नहीं आती, वो तो हम पढ़ा के सिखा लेंगे, लेकिन इंटरव्यू को क्रैक करना इज अ सॉफ्ट स्किल्स गेम। ओके, क्योंकि किसी ने ऊपर बोला भी था कि मुझे समझाना आप इंटरव्यू कैसे करते हैं, सो आई एम गोइंग टू कम टू दैट क्वेश्चन आल्सो। मैं अब डोंट थिंक कि मैं भूल गया हूं, आई हैव दैट इन माय माइंड। बट इन 6 मंथ्स में हम इसको इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे,
इस 6 मंथ्स में हम इसका साइबर सिक्योरिटी का बेसिक कोर्स समझाएंगे ताकि इसको साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। थर्ड, इनकी पर्सनालिटी पे काम करेंगे। वंस दीज 3-4 थिंग्स आर सॉर्टेड इन फर्स्ट 6 मंथ्स, सौरभ की नौकरी लग गई, बट हिज क्लासेस विल कंटिन्यू अगेन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ही विल स्टडी विद अस। सो ड्यूरिंग द जो 18 महीने का कोर्स है, पहले 6 महीना बेसिक एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फोकस है, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट 6 मंथ्स विल बी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और उसके बाद सौरभ हमारे साथ 6 महीने का इंटर्न, हमारे साथ नहीं सॉरी, हम उसको 6 महीने का इंटर्नशिप कराएंगे इन अ कंपनी विच विल गिव हिम जो उसको साइबर सिक्योरिटी का इंटर्नशिप कराएगा। और जैसे ये 18 महीने कंप्लीट हो जाए, ही विल ज्वाइन द कंपनी जिस कंपनी ने उसको फर्स्ट 6 मंथ्स में नौकरी दे दी। ओके, जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि आपको समझ में आ गई ये चीज, और अगर नहीं समझ में आया वापस समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग कि हाउ सौरभ का जर्नी रहेगा? सपोज साइबर सौरभ वांट्स टू डू अ कोर्स विद अस। ओके, रिचा यू हैव अंडरस्टूड, वेरी गुड। रिचा जी ऑलरेडी पीएचडी करे तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो मेरे इस कॉल पे बैठे हुए हैं, डिड यू अंडरस्टैंड? Aman said, yes, I understood. Dheeraj says once again, very good, Dheeraj. I love you the way you put it. Let's take an example of Dheeraj only. Okay, I'm going to stop here. Dheeraj को समझ नहीं आया, एक को नहीं समझ में आया तो वापस समझाने के लिए तैयार। धीरज बेटा, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? क्विकली टैप इट हियर। आपको कौन सा कोर्स करना है आगे जाके लाइफ में? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? धीरज, आई वांट यू टू टाइप क्विकली, आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है? बिकॉज अभी मैं आपको सिर्फ आपकी एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर, अभी रुको आप। ओके, नाउ धीरज, सपोज ही सेज ही इज डूइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, दैट मींस लेट्स से फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, मुझे नहीं पता, लेट्स से ही इज एन इंजीनियर और ही इज अ बीसीए। अब ये आगे जाके करना चाहता है लेट्स से एन एमएस प्रोग्राम इन डेटा साइंस, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, एंड ही वांट्स टू डू इट फ्रॉम टैलेंट एज एंड नोवाटो। व्हाट विल हैपन इज, हम पहले धीरज का एक इंटरव्यू करेंगे टू सी उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कितना आता है। सो एक बेस लेवल का टेस्ट है। मान लीजिए ये धीरज ने पास किया, उसके बाद धीरज हमारे 18 महीने कोर्स में एनरोल करेगा। अब ये 18 महीने के कोर्स में पहला 6 महीना हम धीरज को थोड़ा सा डेटा साइंस पढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा फोकस इसकी पर्सनैलिटी पे होगा और ज्यादा फोकस इसकी कम्युनिकेशन, हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर अ रेज्यूमे, हाउ टू प्रिपेयर जीडी, इस सब चीजों पे ज्यादा फोकस होगा। जब इसने ये 6 महीने में रेडी हो गया, हम इसी 6 महीने में धीरज को जॉब दिला देंगे इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, लेट्स से इन अ कंपनी लाइक Amazon। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। जैसे ही फर्स्ट 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए, अगले 6 मंथ्स धीरज फुल टाइम सिर्फ डेटा साइंस सीखेगा। और ये डेटा साइंस को पढ़ाने के जो लोग होंगे, दे विल बी पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो मेरे जैसे टीचर नहीं होंगे, दीज विल बी जो डेटा साइंस का कोर्स चला रहे हैं या डेटा साइंस पढ़ा रहे हैं या डेटा साइंस खुद कर रहे हैं इन लार्ज कंपनीज। सो ये प्रोफेसर्स नहीं है, दीज आर कॉल्ड प्रैक्टिशनर्स। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। सो पहला 6 महीना फाउंडेशन जिसमें नौकरी मिल गई, नेक्स्ट 6 मंथ्स डेटा साइंस जो प्रैक्टिशनर्स ने पढ़ाया। अब धीरज उसी Amazon में जहां उसकी प्लेसमेंट हुई थी, 6 महीने का इंटर्नशिप करेगा इन डेटा साइंस। इसके साथ इसके 18 महीने कंप्लीट हो गए और फिर वो Amazon को फुल टाइम जॉब ज्वाइन करेगा एट अ व्हाटएवर 30, 40, 50,000 सैलरी जो भी उसको Amazon ने दे दिया होगा। ऑलराइट, धीरज, गिव मी अ थम्स अप दैट यू हैव अंडरस्टूड। थैंक गॉड, अगर धीरज बोलता नहीं समझ में आया तो मेरे बाल वैसे ही कम है तो बच्चे कुछ भी खर्च निकल जाते हैं, बट आई एम वेरी गुड दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अमन, अमन ने मुझे 1-on-1 मैसेज भेजा है, सर मुझे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, मुझे इसके बारे में और बताइए। अमन, ये जो है ना 1-on-1, वी विल टेक इट सेपरेटली, ओके, क्योंकि मे बी बाकी सबको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको पता है कि नोवाटो की टीम यहाँ पर है, नोवाटो की टीम, अमन कुमार सिंह, जस्ट रीच आउट टू अमन कुमार सिंह, ही वांट्स टू डू अ प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी वंस दिस कॉल इज ओवर, सो ही वांट्स टू नो द प्रोसेस एज वी मूव फॉरवर्ड। अमन, सब लोगों के लिए, कोई भी बंदा किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट हो, प्रोसेस सिंपल है। आपको हमारी नोवाटो टीम से टच बेस होना पड़ेगा। ओके, हमारी नोवाटो टीम से आपको टच बेस होना पड़ेगा एंड द नोवाटो टीम फिर आपको गाइड करेंगी पूरे नेक्स्ट स्टेप्स पे। बहुत सिंपल स्टेप्स है, मोर और लेस जैसे मैंने आपको समझाया था in case of that other example I gave. Okay, now the bigger question here comes is,
कि सर मेरे को अगर 6 महीने में मेरे को नौकरी मिलेगी, मुझे उसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी है, देयरफॉर आई एम गोइंग बैक टू यू नो सम थॉट्स दैट सम ऑफ यू सेड कि मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, लाइक एक बच्चे ने बोला था आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, राइट, समथिंग लाइक दैट, राइट. सो आई एम गोइंग टू नाउ टॉक अ लिटिल बिट अबाउट बोथ, लिटिल बिट अबाउट इट, क्योंकि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको जॉब दिलानी है हमको, आप अपने आप के लिए कौन सी मेहनत करनी चाहिए, हाउ डू यू गो अबाउट इट एंड थिंग्स लाइक दैट. ऑलराइट, ओके. So Dheeraj Kumar had said that how to prepare for interview. All right. So Dheeraj, मैं आपको बता रहा हूँ कि preparation of interview कितनी easy चीज है. Okay. How many of you know? How many of you know कि पहला सवाल इंटरव्यू में क्या होता है? Just put it on the chat box. पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? Come on, chat box. Come on, बच्चा, आप लोग बहुत अच्छे हो सबके सब. Tell me about yourself. See, Satyarupa already knows the first question. पहला क्वेश्चन, tell me about yourself. Absolutely correct. धीरज से सर पूछते हैं, पहला सवाल होता है about myself. Very good, very good. और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. दूसरा सवाल क्या होता है? चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन डालो. Introduce yourself. Tell me about yourself. Smriti, very nice. और introduce yourself एक ही क्वेश्चन है, मतलब it's a different bottle. You know, we say that is the same liquor in two different bottles. But yes, या तो वो tell me about yourself है, या तो बोलेगा introduce yourself. Second, now I'm going to get आगे का क्वेश्चन क्या होगा? आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो? Very nice, शिल्पा, क्यों करना चाहते हो? Why do you want to do this job? Very good. Why? अमन ने मेरे को मैसेज भेजा, why should I hire you? Why do you want to join us? Okay, okay, very good. चलो, why do you want to join us हो गया. Okay, next question क्या है? तीसरा बताओ. तीसरा ऑलरेडी ऋचा जी ने बता दिया है, अपने स्किल सेट और अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताओ. वेरी नाइस क्वेश्चन. तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया. चलो चौथा क्वेश्चन, प्रशांत जी बोल रहे हैं कि प्रशांति सिंह अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओ, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमको समझाओ. वेरी नाइस. तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया. पांचवा क्वेश्चन, हम पांच ही क्वेश्चन. सत्यरूपा से अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताओ. सो ब्यूटीफुल. सो बच्चों, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो ऑलरेडी आप लोगों ने खुद ही बताया. प्रॉब्लम ये है कि क्या आप उसकी तैयारी कर रहे हो. सो इंटरव्यू का क्वेश्चन पेपर, अमन इज सेइंग शॉर्ट टर्म गोल बताओ, लॉन्ग टर्म गोल बताओ. वेरी नाइस. सो द गुड न्यूज इज यू ऑलरेडी नो ऑल द क्वेश्चंस दे आस्क इन एन इंटरव्यू. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इटसेल्फ. इंटरव्यू का क्वेश्चन इज ओनली क्वेश्चन पेपर इन द वर्ल्ड जो ऑलरेडी मार्केट में है. एवरीबॉडी नोज. भले ये का बात या मैं 25 साल एक्सपीरियंस के बाद का इंटरव्यू दे रहा हूँ, या गौतम जी जो हमारे डायरेक्टर रहे हैं लाफार्ज के, वन ऑफ सीमेंट कंपनीज इन द वर्ल्ड, उसके डायरेक्टर रह चुके भी क्वेश्चंस होंगे ना, बिलीव मी, उनको भी पहला सवाल ये बताओ. बच्चों, क्वेश्चन पेपर इंटरव्यू लोगों ने उन 5, 8, 10 क्वेश्चन की तैयारी करी है. That's the big question. Tell me about yourself. ये क्वेश्चन पे 70% डिसीजन लिया जाता है फ्रेशर्स को. अगर मेरे पास 10 फ्रेशर्स इंटरव्यू के लिए आएंगे, जनरली हम भी एक पहला क्वेश्चन पे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, 70% डिसीजन कि इसको लेना है कि नहीं लेना है इसी क्वेश्चन पे टंगा हुआ है बच्चों. टेल मी हैंड ऑन योर हार्ट, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को एक्चुअली लिखा है पेपर पे? टेल मी अबाउट योरसेल्फ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन? Has anybody written the answer of tell me about yourself? Okay, Aman says कि हाँ सर मैंने लिखा है. God bless you, Aman. But believe me, अभी जो सन्नाटा आया हो ना चैट बॉक्स में, कोई रिप्लाई नहीं लिख रहा है, वो इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि आप लोगों ने नहीं लिखा. आप लोग ये सोचोगे उस दिन जाऊंगा सर इंटरव्यू में, बैठ जाऊंगा, बोल दूंगा उसको, सब है, कौन सी बड़ी बात है. लेकिन इवेंचुअली जब हम आपके सामने कोई मेरी तरह बुढ़ा आदमी बैठा होगा और आपको पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सडनली आप मैं बिल्कुल तैयार हूं, वो आप अपना माइक खोलें और इस क्वेश्चन का आंसर दे. If you tell me about yourself, except Richa ji, who is little a grown up, प्रशांत, अमन, सत्यरूपा, आपने कहा ना मैंने लिखा है इसका आंसर. अपनी माइक खोलो और इस क्वेश्चन का आंसर दो. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अच्छा, शिल्पा सडनली से सर आपकी अब आवाज ही नहीं आ रही है. ओके, इज इट बेटर शिल्पा? जस्ट गिव मी अ थम्स अप. शिल्पा बेटे, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर.
can you hear me? I just okay beta, God bless you. Okay, God, I'm seeing better now. Okay, so it's better now. Thank you Shilpa for confirming that you can hear me now. So ये question, tell me about yourself, is actually known question, लेकिन हम लोगों ने इसके आंसर ही नहीं लिखे। और जब हम किसी इंटरव्यूअर के सामने खड़े हो जाते हैं, हमको उस समय जो समझ में नहीं आता उसको क्या आंसर दे। उसकी प्रॉब्लम यह है कि हमने क्वेश्चन पता था लेकिन उसकी तैयारी नहीं करी थी। इन आर प्रोग्राम जो हम आपको पहले 3 to 6 months लेंगे, उसमें लिटरली टेल मी अबाउट योरसेल्फ हम आपसे लिखवाएंगे, उसको करेक्ट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और नॉट ओनली टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दिस इज अ सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस वी एक्चुअली गेट यू प्रिपेयर्ड। क्योंकि बच्चों, कंपनी क्या क्वेश्चन पूछेगी हमको सबको पता है, लेकिन हम आपको तैयार कराते हैं उस चीज के लिए। बाय द वे, आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि आप में से कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई डेटा साइंटिस्ट है, कोई एमबीए कर रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं आप कर क्यों रहे हो। व्हाई आर यू डूइंग एन एमबीए? यू हैव नो क्लू। जनरली बच्चों का स्टैंडर्ड आंसर रहता है, सर मैं एमबीए कर रहा ताकि मुझे नौकरी मिलेगी। आई मीन, जब जैसे ही आपने ये जवाब दे दिया, बी रेस्ट एश्योर्ड, वो बंदा बोलेगा वो तो मुझे भी पता था, कुछ अपने बारे में कोई ढंग की बात बताते। सो कहीं ना कहीं हमको पता है लेकिन हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। सो somebody who asked me this question कि मुझे इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, बेटा सारे क्वेश्चंस पता है, जस्ट उनको लिखो, एक क्वेश्चन का आंसर करो, आंसर को मिरर के सामने बोलो, मिरर में देखो कि क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाथ का घुमाना, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे जा रही है, क्या आप एकदम राग सुना रहे हो उस बंदे को। और मैंने जनरली देखा है बच्चों का इंटरव्यू देते हुए, टेल मी अबाउट सर, एग्जांपल मेरा, सर माय नेम इज शिल्पा कुमारी, मैंने ना सर 10th किया था फ्रॉम श्री संतराय फलाना स्कूल से जो धनबाद में है, फिर उसके बाद मैंने 12th किया कोई दूसरे स्कूल का नाम। भाई मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मुझे क्या पता तुम्हारे स्कूलों के नाम क्या है। जस्ट टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स। Sir, do you know I am the topper of my mathematics batch? Sir, do you know that during my school days I was an active participant in things like ABCD और मैंने फलाना फलाना awards जीते हैं। Sir, मैं अपने I have done a lot of social projects में हमने I have attended a lot of blood donation campaigns in the school because we want to see your understanding of things. We want to see your how you handle yourself in नॉर्मल सिचुएशंस। बिकॉज हमको ये भी पता है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो ना बच्चों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और जब हमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिंटेल और इन्फोसिस और इसमें आसमान जमीन का फर्क है। हम वापस आपको सिखाते हैं वंस यू जॉइन अस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि क्या आप कॉन्फिडेंट हो, कैन यू पुट योर पर्सपेक्टिव क्लियरली, आर पीपल एबल टू अंडरस्टैंड यू, और आप प्रॉमिसिंग हो क्या। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उतना खतरनाक डेटा नहीं है जितना गौतम सर के पास था, बट मोटा मोटी इंडिया में 3 लाख से 5 लाख बच्चे हर साल नौकरी ढूंढने निकलते हैं ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव बेसिस। 3 से 5 लाख नौकरी है 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो कंपटीशन तो ऑटोमेटिकली। और अनफॉर्चुनेटली बच्चे इतने हैं और नौकरियां इतनी कम है कि जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस का इशू होता ना, फट से उसको उड़ा देते हैं। I want you guys to work on all those aspects. All right? Good. Is there any other question that you have for me from me to understand? Because then I would like to kind of keep the talk in that direction. और अगर आपको questions है related to the program, and जैसे आप किसी some people wanted to know more about Novato, then I can pass the mic back to our Gautam sir for further questions and answers. Are you guys with me? Am I clear? Your voice चली गई मेरी already. Am I audible, Gautam sir? Yeah. Thank you. All right. बहुत all right. Over to you, Dr. Saab. Over to you, Gautam sir. Sorry. Unless किसी को कोई और question है, if you have any question, just over to you, sir. Gautam sir, over to you. नहीं, थैंक यू। मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने मतलब बढ़िया ढंग से समझाया सबको, तो बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे हम अंग्रेजी में ही कहते रहते हैं तो आपने हिंदी का इस्तेमाल किया। आई एम श्योर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोगों ने एंजॉय भी किए होंगे। तो सभी से मेरा विनम्र निवेदन ये है कि जो भी आपके मन में प्रश्न है या जो भी आप जानना चाहते हैं यहाँ पूछिए।
आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। आपके जो भी क्वेरीज होगा हम अपने मतलब जितना हम जानते हैं उतना हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, ये मेरा कहना है। और कोई भी आप में से कोई भी अगर प्रश्न है, जो भी प्रश्न है, आप कोई भी आप इसको अनम्यूट करके बताइए। ओके, जब तक आपका कुछ क्वेश्चन आता है, आई टेक 1 or 2 क्वेश्चंस दैट आर ऑलरेडी नाउ ऑन द चैट बॉक्स. प्रशांत इज या आस्किंग, व्हाई आर यू शिफ्टिंग फ्रॉम एमबीए टू कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम? प्रशांत बेटा, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया. आप चाहे तो अपना माइक ऑन करके मेरे को बता दो, आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू से हियर? आई डिडंट गेट, just repeat this point. Prashant, can you hear me? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. टेल मी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. क्या आप क्या कहना चाहते हो? सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इंटरव्यू में गया और मेरे से वो उन्होंने पूछा कि आप अभी एमबीए कर रहे हो, तो और जैसे मैं मार्केटिंग से कर रहा हूँ, उसके बाद वो पूछेंगे कि वेरी आप गुड. एमबीए मार्केटिंग, मतलब ये फाइनल डिसीजन होता है मैक्सिमम पीपल का, फिर आप इस करेक्ट प्रोग्राम है. से दूसरे प्रोग्राम में क्यों शिफ्ट हो रहे हो? बहुत बढ़िया. मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप अपना एमबीए मार्केटिंग छोड़ो, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ. और सॉरी, हाँ, मेरे घर का बेल बज गया. वर्क फ्रॉम होम के अपने लफड़े भी हैं. ऑलराइट, सो आई एम नॉट टेलिंग यू बेटा कि यू शुड लीव. मैं बिकॉज जनरली बच्चों ने कहा कि मैंने बीसीए किया, कंप्यूटर साइंस किया, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स उस एरिया में दे दी. बाय द वे, आप मार्केटिंग के बच्चों, आप ऑनलाइन प्रोग्राम करो, और सॉरी, आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम करो. इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग, इंडिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड माइका, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन. शायद आपने सुना हो प्रशांत बेटा. यस We सर. are the only partners for Mica for that program. So you can do an advanced digital marketing program from Mica with us. मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि आप कंप्यूटर साइंस करो. इनफैक्ट अगर मुझे कोई बोलेगा कंप्यूटर साइंस करने के लिए, मैं क्या पगला गया हूँ क्या? बिकॉज मैं एचआर वाला बंदा हूँ, तो मेरे को तो कंप्यूटर साइंस समझ में भी नहीं आएगा फॉर दैट मैटर. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत समझ में आएगा बिकॉज आई वर्कड इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स. बट आई एम नॉट, इफ आप लोगों को लग रहा है कि इस कॉल पे कि मैं सबको बता रहा हूँ तुम लोग कंप्यूटर साइंस पर, नहीं बच्चों, मेरा ये पॉइंट नहीं था. Because most of you were said BCA, some of you said MCA, some of you said artificial intelligence. So I thought most of this crowd seems to be from some engineering and computer science background. That's why I kept the examples like that. Otherwise, Prashant beta, आप digital marketing करिए. We have the best institute in this country. मैं आपको suggest करूंगा कि आप Talent Edge की website पे जाइए. हमारे पास मैनेजमेंट के इंडिया के सबसे ज्यादा कोर्सेज है. Whether it is management, strategic management, human resource management, digital marketing, your investment banking, अगर कोई financial services का बच्चा है, वो टाइप. our diversity of programs बहुत ज्यादा है. तो मैं तो बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कंप्यूटर साइंस करने के लिए. Now when it comes to your field, your relevant field, now it becomes like a one-on-one thing. So मैं सजेस्ट करूंगा, आप नोवाटो की टीम आपको टच बेस करेगी. आपको इसमें जो एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग करनी है वो भी आपको समझा सकते हैं, या आपका मेरे साथ वन ऑन वन करा सकते हैं. ओके, बट मोटा मोटी प्लीज, मार्केटिंग मेरा बहुत फेवरेट फील्ड है. इसको बिल्कुल यस मत सर. छोड़ना, क्योंकि अगर दुनिया में 100 सीईओज है, सीईओ इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, अगर यस सर. 100 है, 75 मार्केटिंग वाले. बिकॉज जो बंदा कंपनी में धंधा लाता है ना, उसको सेल्स एंड मार्केटिंग वाला बंदा बोलते हैं. उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है. So out of 100 CEOs in the world, 75% come only from the field of sales and marketing. अगर आपने वो फील्ड चूज किया है, मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं बोल सकता कि आपने गलत किया. तो बेस्ट किया बेटा आपने. बट उसमें आपको अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है. वेयर आर यू डूइंग योर एमबीए फ्रॉम? आई एम परस्यूइंग एमबीए फ्रॉम एलन मिश्रा सर, पटना. आप एलन मिश्रा से कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट. आप बहुत अच्छा करिए. देखिए, आपको भी पता है कि देश में वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय 10,000 साइड मैनेजमेंट स्कूल्स है. सर. वन मोर क्वेश्चन सर. एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो. 10,000 मैनेजमेंट स्कूल्स है बेटा देश में. नहीं, मैं समझ गया, आप पूछ लेना, पहले मैं आपको कंप्लीट करता हूं कि 10,000 एमबीए कॉलेजेस है इस देश में, और 10,000 कॉलेज में मोटा समझो कि कितने बच्चे निकलने वाले हैं. आर यू द बेस्ट टू गेट दैट सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब विच इज अवेलेबल? उस चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा 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 मेहनत करनी पड़ेगी. दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से. गो अहेड प्रशांत, आस्क मी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. Prashant, go ahead and ask
me your next question. Sir, which Okay, program I is think better, Prashant sir? is dropped out. Dheeraj. Hello, sir. Okay, Am I audible, very sir? good question. Which up? Okay, Prashant. Yes, I heard your question. Which program is better, right? Yes, sir. It's about digital marketing Prashant, your or the question data is which analytics. program is better? Digital marketing or data analytics. Okay, so very good. I heard you. Let me answer now. So my first request to all of you is, instead of opening on the mic, just type the questions here. I'm more comfortable you typing the question here. You type your questions here, I'll answer that. अभी प्रशांत ने बोला कौन सा कोर्स अच्छा सर, डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है कि ये कोर्स दूसरा कोर्स अच्छा है? देखो बच्चों, मैं आज आपको एक सिंपल गुरु मंत्र बोलूंगा। मेरे हाथ में 2 हाथों में 10 उंगलियां हैं, मेरे को 10 की 10 प्यारी है, एक भी नहीं होगी ना, my other 9 unglias will be really uncomfortable. Likewise, जो एक कंपनी होती है उसमें सेल्स, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब के सब अच्छे। सो डोंट से कि कौन सा कोर्स अच्छा है, ये कोर्स अच्छा है, वो कोर्स अच्छा है, ये नॉनसेंस का डिस्कशन है। सारे कोर्स अच्छे हैं, लेकिन जिस कोर्स में मुझे इंटरेस्ट है, सपोज अभी हमने प्रशांत ने देखा, प्रशांत इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, इज ही प्रिपेयरिंग फॉर जो मार्केटिंग अगले 5 साल में होने वाली, इज ही प्रिपेयरिंग फॉर दैट व्हिच इज व्हाट वी कॉल एज डिजिटल मार्केटिंग? इफ आंसर इज यस, तो ये बहुत अच्छा कर रहा है। इज ही डूइंग मार्केटिंग एनालिटिक्स व्हिच इज द नेक्स्ट लेवल इन मार्केटिंग? देन ही इज डूइंग द राइट थिंग। लाइकवाइज, अगर मैं खुद एचआर का बंदा हूं, एचआर में जो नेक्स्ट फील्ड इन एचआर इज व्हाट वी कॉल एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Am I doing something in performance management? Yes. Am I doing something in leadership and coaching? Yes. Then I'm already doing the right things. Okay. So कहना है कि आप जो भी फील्ड कर रहे हो, बट उस फील्ड में आप बेस्ट बनो, उस फील्ड में आप बेस्ट बनो। That's the only thing I want to share with you. So if you are a computer guy, आप कंप्यूटर में बेस्ट बनो. If you're a marketing guy, become the best. If you're a finance guy, become the best guy in finance. So उस बेस्ट को बनने के लिए नए न्यू एज कोर्सेज जो उस एरिया में है, उनका हाथ पकड़ो। Is that clear? I'm going to stop here. Now I'm going to go to the next question of Dheeraj. Sir, please enlighten how to start a search for a job. Dheeraj, unfortunately job market इतना crowded हो गया और इतना ये है कि इसमें तो बेसिकली 3, 4, 5 चीजें हैं। तो फर्स्ट चीज तो मैं हमेशा बोलूंगा, उस इंस्टीट्यूट में जाना या वहां से पकड़ना जब इंस्टीट्यूट ही आपकी नौकरी की जिम्मेदारी लेता हो। लाइक जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स। सो पहला काम तो करो कि वो इंस्टीट्यूट चूज करो जहां से आपको नौकरी मिलती है, नंबर 1। अब अगर नहीं मिल रही है, लेट्स से यू हैव टेकन ऑलरेडी एडमिशन एंड अब जॉब नहीं मिल रही काइंड ऑफ अ थिंग, देन द अदर ऑप्शन इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दिस जॉब पोर्टल्स। फॉर एग्जांपल, एक naukri.com सुना होगा, लेकिन naukri.com से अच्छा है आप, बिकॉज़ यू आर अ फ्रेशर, दिस समथिंग कॉल्ड एज फर्स्ट नौकरी। एक naukri.com है, एक फर्स्ट naukri.com है, दोनों एक ही कंपनीज है, लेकिन दोनों अलग अलग पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं। गो फॉर फर्स्ट नौकरी, बिकॉज वहां पर आपको इमीडिएटली थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। थर्ड, देयर आर लॉट ऑफ दीज IIM जॉब्स करके ना, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्टल्स आए हैं जो ऑनलाइन आपको जॉब्स देते हैं। पर जब तक जॉब नहीं मिलती, टेक एन इंटर्नशिप। और उसके लिए मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा, ऑनलाइन में इंटर्नशाला है, internShala.com। इंटर्नशाला में अपना रिज्यूमे अपलोड करिए, जहां मिल और इंटर्नशिप वहां फट मिलती है, टेक एन इंटर्नशिप। क्योंकि इंटर्नशिप से आपकी एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगी और आपको टाइम भी मिलेगा ये करने के लिए, आपको टाइम भी मिल जाएगा जॉब सर्च करने के लिए। सो जब तक जॉब नहीं मिलती है तो इंटर्नशिप का भी हाथ पकड़िए। रेस्ट, कीप ऑन लुकिंग आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट कीप ऑन कमिंग, ऑनलाइन में आती है। राइट लेटर्स डायरेक्टली टू द HR डिपार्टमेंट्स। हर किसी कंपनी के वेबसाइट पे आपको मिलेगा, इफ यूर करियर्स का साइट, करियर्स पे क्लिक करिए, वहां पर वो बोलेगा हमारा एड्रेस, अगर आपको अपना रिज्यूमे डालना है बिंदास डालते जाओ। ये भी मैं बोल रहा हूँ, 100 में 95 लोग रिप्लाई भी नहीं करेंगे, लेकिन जो 5 रिप्लाई करेंगे, कम से कम आपके पास एक 5% ऑपर चांस है to make it happen through that route as well. All right, I'm going to leave you here. Richa says it is always best to go to the field of management, because everything at the end of that is management. Richa beta, that's very nicely said. I completely agree with you. So I'm going to stop here.
Okay, I think all the questions in my bucket are over. Now I'm going to hand it over back to Gautamji because Gautamji, I think time is up. Over to you, sir. Hey, thank you, डॉक्टर साहब. एक मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन था बीच में मैंने देखा था, उसमें भी थोड़ा सा दो शब्द बोल दीजिए. सर कौन सा क्वेश्चन? सॉरी, हो सकता मैंने मिस किसी ने कर आपको दिया हो. पूछा था कि किसी ने आपको पूछा था why there is so much of changes in your job. In my changes in my job. Okay. Yeah. I don't know who said that. But let me tell you, I मैंने think ICICI Bank was my first job, और मैं it doesn't matter it किसने is पूछा, but it's a good question. Pratyusha Guha, she asked, Okay. why are there Very so nice. job Pratyusha, changes in your profile? okay, I didn't see that at all. I would have been more than happy to answer that, but now I'm going to answer that. Pratyusha, Yeah. beta, my first job was ICICI Bank. I spent 4 years there. My second job was with GE. I spent 3.5 years there. और जो मेरा GE का boss था, he joined Sintel and I joined with him. In Sintel, I've spent 5.5 years. उसके बाद मैं Fabs में था. That Fabs, I worked there for 9 years. और वही कंपनी को टैलेंट एज ने टेक ओवर किया. तो टेक्निकली मैं उसी कंपनी में हूँ, जस्ट उसका नाम बदल गया बिकॉज माय कंपनी गॉट टेकन ओवर बाय टैलेंट एज. सो बेटे, अगर आप मेरे सीवी में 5 कंपनीज देख रहे हो, इन 5 कंपनीज में एक्चुअली देयर ओनली 4. इन 4 कंपनीज में मैंने 22 साल निकाल लिए. And that's not a small time at all. Because I don't have really too much of job changes. But generally, अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में, मेरे डैडी की बात बता रहा हूँ, वो 25 साल HMT वॉच फैक्ट्री में थे. हाँ, वो जमाना अब खत्म हो गया. So generally, if you spend anywhere between 4 to 5 years in one company, you've done a fantastic job. That's a thumb rule that we have now. All right. So while you might have seen 4 or 5 names, but वो 5 साल में 5 कंपनीज नहीं थी, वो 22 साल में 5 कंपनीज थी. Okay, so it is not a small time that I spent. I hope, Pratyusha, you are happy with what I have done in life now. Then I guess. Okay, let me go back to the chat box and figure out where was this question. Actually, I missed it. Pratyusha, did I answer your question unless you've already left? Pratyusha Guha to everyone. Why are there so many job changes in your profile? Now I figured that out. All right, Pratyusha, I hope I answered your question. If you have any other question, feel free to ask. Yeah, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए please. I'm happy Pratyusha said thank you. I swear, Pratyusha, I missed the question completely because my eyesight has gone a little weak, so I use a specs now. And क्योंकि पीछे से वो you are right, thank you sir, no sir वो करते आ रहे हैं ना, तो वो the chat is moving upwards. I missed this question. Sorry, dear. But Gautamji, thank you for getting me back onto this question. Yeah, thank you. और we really expect much more questions. सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि और पूछिए, आपका क्या जानना है. Anything? तो ये था कि can we give them an Novato can के you बारे put में. and so they want to understand about Novato, so maybe you can talk about it. Also put on the chat box some Novato को email ID if they want to talk to any one of you after this chat, क्योंकि सारे बच्चे जनरली नहीं बोलते हैं, कभी कभी वो थोड़े से शाई भी होते हैं. That's why I use the chat, ताकि जो मन में आए डाल दो, kind of a thing. So you may want to put on the chat box an email ID where they can write and connect one-on-one later on as well. Correct. Yeah, we'll do that. Definitely we'll do that. Already we have posted info@novato.co.in. इसमें आप लोग Fantastic. जो भी queries है आप लिख सकते हैं and हम उसका जवाब देंगे. One Satyarupa Kumari, उनका प्रश्न ये है कि I am pursuing MBA after doing BCA, and this question always asked in interview, how to answer this. Which question are you referring? अगर आप थोड़ा बताओगे तो. Sure. I'll answer, Satyarupa. But before that, I just saw Soumya Rahi asking me, sir, I'm a BBA student. Is it mandatory for me to do MBA? No, beta, there is nothing called mandatory. But then the logic is कि अगर आपको MBA नहीं करना था तो BBA क्यों किया? BCom कर लेते, right? So it is not mandatory, but it's a logical progression.
ओके सो लाइक फॉर एग्जांपल अब बीसीए गाय सेज कि मेरे को एमसीए करना है, तो लाइकवाइज बीबीए बंदे को लगता है मेरे को एमबीए करना है। मैंडेटरी तो कुछ भी नहीं है, unfortunately or fortunately it is not mandatory, but yes, if you as a person with a BBA will get a say a 10,000 12,000 15,000 job, with an MBA that number will change to 30,000 40,000 50,000 kind of a thing. Okay, so that's it. Two, post graduation is always better than graduation, keep that in mind. जितना जितना प्रोफेशनल कोर्सेज आप करेंगे उतना उतना you will be able to bring value to your resume and of course demand a price as well. Pratisha, beautifully put. I am in HR and this is a common question we get asked. So yes, I agree with you. Loyalty has become a little fragile, but I must tell you कि एक कंपनी में कम से कम 4-5 साल जरूर लगा लेना, because that gives you a complete experience of that. Pursuing MBA after doing BCA, and this question always gets asked in the interview. क्या आप BCA कर रहे हो? Why are you doing an MCA? You have asked this question to why are you doing an MBA after BCA? Answer is simple, that you know you want to run business over a period of time, but computers is what interests you. Now, for example, if you look at an Infosys and Ryan Murthy, who is the guy who started Infosys, आज की डेट में वो थोड़ा ना कोडिंग कर रहा है, बिजनेस चला रहा है from that point of view. So eventually you want to run the business of IT or computer applications or something in the field of IT, let's call it. To run that business you're doing business, the foundation is in computer application, so that you understand the technical of a direction. Understand. Audio is off. Sorry, Gautam ji, I got logged out. Okay, now I'm back. Okay, I'm sorry for that. All right. Okay, with that thing, all the chats have gone up, because ये जब मैं log out हो गया तो सारे chats निकल गए हैं. Was there any other question, Gautam ji, that I must have missed? So please, I need your help, because मेरे chat में सारे questions निकल गए. नहीं, और कुछ नहीं था. वही प्रश्न जिसके आप जवाब दिए हैं, उसमें मैं भी ये चीज कहना चाहूंगा. Yes, sir. Over to you, sir. Although it's a frequently asked questions in so many interviews, लेकिन ये क्या होता है कि इसका दो पहलू है. पहले तो ये हुआ करता था कि ठीक है, कोई अगर 20 साल 25 साल काम कर लिया, that used to be seen as a good thing, कि loyal employee and all that. But loyalty is now waning these days. And sometimes it is also being asked in organizations, कि अरे आप 20 साल क्या कर रहे थे? And if you are there for 20 years or 25 years, why do you want to leave now? So ये भी पूछा जाता है. तो दो पहलू है. Yes, of course, people are now have become, मैं तो इस पहलू से देखता हूँ कि अभी जो हमारे यंगर जनरेशन्स हैं, जो भी हमारे एस्पायरिंग एग्जीक्यूटिव्स है, लीडर्स है, इनके एस्पिरेशंस लेवल बड़े हैं, विच इज़ वेरी गुड. मैं ये कहना चाहूँगा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रियली दे वांट टू मूव अप द लैडर फास्ट, एंड उसके लिए जो भी करना चाहिए, लाइक इन्वेस्टिंग इन लर्निंग, इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब करते हैं, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड. तो नेचुरली वो 20 साल 25 साल ये सब अभी कम हो गया. आजकल इतना चेंजेस का मतलब ये होता है कि अगर हर एक 1-2 साल में कोई चेंज कर रहा है तो ये पूछा जाता है. अदरवाइज पीपल अंडरस्टैंड that if somebody is working in an organization for 3, 4 or 5 years, so that is sufficient to let us say acclimatize oneself with the organization, its culture and working pattern, and deliver results also. So one way it is good thing, because लोग people are able to get new experience, gather new experience, उनका नया नया अनुभव होता है, नया अपॉर्चुनिटी मिलते हैं. एंड मतलब कॉर्पोरेट की जो सीढ़ी होती है कैरियर की, जो डेवलपमेंट की, उसमें भी इट गोज अप फर्दर. सो वन वे इट इज गुड ऑल्सो, बट दीज आर टू पर्सपेक्टिव. दो पर्सपेक्टिव है. एक तो वो है लॉयल्टी जो 20 साल 25 साल से होता है, और दूसरा ये होता है कि आई एम working for a fair enough time, and then I am moving on for my exposure in other industries or even for my career progression. ये मेरा कहना था, ये जस्ट मेरा अनुभव है. और कोई प्रश्न अगर है
Acha, as you know, we are freshers, and in every organization, it is very common questions why we hire rather than those who are having experience how to answer this question. ये डॉक्टर साहब आप बताएंगे, ये सौम्या राही पूछ रहे हैं कि मोस्टली हम लोग फ्रेशर हैं और सारे ऑर्गेनाइजेशन में करेक्ट, आई गॉट द क्वेश्चन सर. सौम्या बेटा, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये आप अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जब हम एचआर वाले बंदों को लेते हैं ना, हमको एग्जैक्टली पता है कि मेरे को फ्रेशर्स, मेरे को इस साल एग्जांपल 4000 फ्रेशर चाहिए और 2000 एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए. तो जब हम आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, हमको तो पता ही है ना आप फ्रेशर हो. ऐसा तो नहीं कि बिना रिज्यूमे देखे हमने आपको बुलाया. आप अब अपने अपने दिमाग में आप इंटरव्यू पास नहीं करोगे, बोलोगे वो तो एक्सपीरियंस वाले बंदे को मिल गया. ये आपकी गलती है, क्योंकि आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुई. अदरवाइज बी रेस्ट एश्योर्ड, जब आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, उसको पता है कि आप फ्रेशर हो. और हर कंपनी में अगर 100 जॉब है, 25 से 30 जॉब तो हमेशा फ्रेशर्स के लिए ही रहती है. आपको गौतम सर भी बताएंगे कि इन कॉर्पोरेट्स वी ऑलवेज वांट द फ्रेश ब्लड, क्योंकि आप लोग नए नए इंस्टीट्यूट से आते हो, नई नई प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेसेस लेकर आ रहे हो, काइंड ऑफ थिंग. इमेजिन करो, मेरे टाइम पे देयर वाज नथिंग कॉल्ड जूम. इस समय मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, लेट्स से सौम्या आप लेट्स से दिल्ली में बैठे हो, आज हम बात कर रहे हैं, राइट. ये चीज बिल्कुल 3-4 साल पहले तो थी भी नहीं. जैसे जैसे हमारा ये कोविड आ गया और हमको कॉल्स लेनी पड़ी ऑनलाइन, मेरे को तो पहली क्लास लेनी भी नहीं आई. लाइक टुडे तो आई नो कि अब तो चैट पे भी हम बात कर सकते हैं. बट मेरे को व्हेन आई स्टार्टेड आई हैड नो क्लू अबाउट इट. हमने तो मेरे जैसे लोग तो सोचने लगे यार ये टीचर्स का तो करियर ही खत्म हो गया कोविड के चक्कर में, राइट. बिकॉज नाउ तो वो क्लास ही नहीं ले पाएंगे, ये तो मर जाएंगे सबके सब. बट ऐसा नहीं होता बेटा. वर्ल्ड इज डायनेमिक एंड वर्ल्ड कीप्स ऑन चेंजिंग. Likewise, corporates need people who are dynamic such as you and also people with experience. लेकिन हम कभी कभी क्या कहते हैं ना, जब सिलेक्शन नहीं होता घर पे मम्मी पूछती क्या हो गया, क्यों नहीं लगी नौकरी. मम्मा वो तो ऑलरेडी ना किसी को उन्होंने ऑलरेडी कोई मिनिस्टर का बेटा था, या तो ये आंसर होगा, या दूसरा ये होगा कि वो उनको एक्सपीरियंस वालों को नौकरी देनी थी. ऐसा कुछ नहीं बेटे. एवरीथिंग इज अबाउट यू. अगर आप इतने स्ट्रांग हो, बिलीव मी, आपको जॉब absolutely immediately मिलेगी. और मैं आपको बता रहा हूँ, there are tons of companies which like freshers more than people with experience. Of course, आप किसी को 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस चाहिए किसी जॉब के लिए, आप तो एलिजिबल भी नहीं हो. But for all jobs that are starting in the corporate world, they are looking for freshers. So please don't have this in your mind कि मैं fresher नहीं हूँ तो मेरे से नहीं होगा. Don't worry about that. Yes, Novato is a great platform. Of course, it's a great platform. In fact, I must share it with you. Talent Edge takes pride in tying up with Novato. Novato हमारे एक बहुत ही important partner रह चुके हैं. The kind of work they do in the entire of Eastern India is simply phenomenal. And I can tell you that it is so ably led by the team of Novato. In fact, today this session possibly नहीं होता if Novato was not there. So Novato team, thank you very much. I and Richa join in thanking you for helping this organize. I have a hard stop now. It's 12:15. Over to you, Gautam sir. Thank you, Dr. Sab. Yeah, participants, any other questions? अगर आपका और कोई प्रश्न है तो पूछिए please. And we'll keep on organizing this kind of webinar or let us say other learning sessions as well. And request all of you to join that. हम आप सभी के पास पहुंचेंगे with our links to join our program. जब भी हम करेंगे आप पार्टिसिपेट कीजिए. और इन द मीन टाइम ऑल्सो ये जो हमारे ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है इसमें, तो उसमें भी अगर आपको कोई प्रश्न है इन द मीन टाइम या कुछ किसी चीज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो आप बेहिचक के उसमें लिखिए info@novato.co.in info@novato.co.in ये ईमेल आईडी है. नोवाटो के बारे में आप लोग थोड़ा जानना चाह रहे थे, तो जैसे टैलेंट एज है, हम भी ऐसे ही टैलेंट एज जैसा एक एडुटेक कंपनी है. We formed it very recently, about let us say 6 to 8 months ago. And हम एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के जरिए कदम रखे हैं इसमें एजुकेशन डोमेन में. लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बताया दैट हमारे और भी 3 वर्टिकल्स हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट वर्टिकल है,
एंटरप्राइज सॉल्यूशंस मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी ट्रेनिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होता है उसमें हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए होता है तो हम एग्जीक्यूटिव कोचिंग आप सब लोग जानते होंगे कि आजकल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव कोचिंग is a very known, let us say, terminology. Most of the executives these days, they go for individual executive coaching for their own development, own personal and professional development. तो उसमें we are having professional coaches available with us. तो हमारे साथ जो प्रोफेशनल कोचेस हैं वो सारे इंडस्ट्रीज से है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से है, एंड दे आर हैविंग let us say minimum 25 to 30 years of experience or even more than 30 years of experience. They are at a, let us say, they have worked at a very high level, top management of the organization in most of the cases. तो उन्होंने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स को ग्रूम किए हैं, तो तैयारी भी किए हैं। तो उनसे क्या है कि 1-to-1 बेसिस पे हम एग्जीक्यूटिव कोचिंग, जो भी एस्पायरिंग लीडर्स होंगे या एस्पायरिंग एग्जीक्यूटिव्स होंगे जो प्रोफेशनल कैरियर में और बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम उनको एग्जीक्यूटिव कोचिंग की सुविधाएं भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये इस कंपनी का फिलहाल का मतलब काम है जो हम कर रहे हैं। और इसके अलावा लर्निंग एंड लेट अस से नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट में भी हम काम करेंगे, जिसके लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम कई किस्म के ये वेबिनार या डिस्कशन बोर्ड हम शुरू किए हैं। तो हम आपसे संपर्क में रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या है इसमें। ये करने से क्या है कि आपको और जानने की और बहुत कुछ जानने की सुविधा मिलेगा, जिसमें जो एक्सपीरियंस्ड कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आके इसमें बात करते हैं। कभी-कभी एकेडमिशियन जो हैं फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, ये लोग भी आके बात करेंगे। और साथ में टैलेंटेज तो हैं ही, टैलेंटेज के साथ भी हम बीच-बीच में ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी ये है कि ना सिर्फ आप आपके फ्रेंड्स और लेट अस से फैमिली लेवल पे या जो भी आपके परिचित हैं और इस तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी आप इन्फॉर्म कीजिए और उनको भी आप मोटिवेट कीजिए हमारे प्रोग्राम में आए और इसको सुने, ताकि सभी लोग इसके द्वारा उपकृत हो। ये मेरा कहना है। और कोई प्रश्न है तो पूछिए, और नहीं तो हम आज के प्रोग्राम जो इसको समाप्त करना चाहेंगे आप सभी लोगों को धन्यवाद करके। So thank you everybody for joining and encouraging us today, and we are really got inspired. हमको बहुत प्रोत्साहन मिला है जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा है और जो डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म पे हुआ है, और हम आगे चल के भी ये चाहेंगे कि आप इस तरह से हमारे प्रोग्राम में आते रहिए और हमसे प्रश्न पूछते रहिए, ताकि इसमें म्यूचुअल लर्निंग होगा। आपको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, हमको भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक बार और हम नोवाटो, टैलेंटेज और हमारे जितने भी सहकर्मी हैं उन सभी के तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।